ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2025 ਦੀ, ਪਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ 53% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਹੈ ਉਹ 56% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 53 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 56% ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਉੱਪਰ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ 42% ਡੀਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ 3% ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 14% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 42% ਮਹਿਜ ਡੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4% ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 4% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3% ਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 2.5% ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग के 15 प्रोपोजल तैयार। पे बैंड पेंशन फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला इस दिन। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा के लिए 10 फरवरी 2025 को डीओपीटी और नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। स्टाफ साइट में पे स्केल मर्जर न्यूनतम सैलरी 36,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 तक की सिफारिश की है। डा और डीआर को मूल वेतन में जोड़ने और देरी होने पर बकाया भुगतान की मांग भी प्रोपोजल में की गई है। 8वें वेतन आयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए 10 फरवरी 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक का आयोजन नॉर्थ ब्लॉक में किया जाने वाला है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी बैठक में स्टैंडिंग कमेटी स्टाफ के सदस्य शामिल होंगे। इस बैठक में पेंशन, पे बैंड,
फिटमेंट फैक्टर समेत कमेटी के 15 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले 23 जनवरी 2025 को डॉप्ट ने नेशनल काउंसिल जेसीएम साइड से 8वें वेतन आयोग को लेकर सुझाव मांगे थे, जिससे 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप का जामा पहनाया जा सके। इस संदर्भ में स्टाफ साइड से जल्द अपने सुझाव पेश करने का आह्वान किया है। शिव गोपाल मिश्रा ने एक डिटेल प्रोपोजल पेश किया है, जिसकी 15 मुख्य सिफारिश हैं, जो शामिल की गई है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पे स्केल के मर्जर की मांग को लेकर भी थी, तथा जिसमें लेवल 1 को लेवल 2 से, लेवल 3 को लेवल 4 से और लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज करने की सिफारिश की गई है। जेसीएम की स्टैंडिंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी 36,000 रुपए निर्धारित की जाए और मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.2 से बिल्कुल भी काम ना हो। फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 के बीच निर्धारित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ने 25% से 30% तक की रॉकेट बढ़ोतरी हो जाएगी। जेसीएमएनसी के सदस्यों ने अब मांग रखी है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसे लागू करने में किसी भी तरह की देरी होती है तो सरकार को इस अभी का बकाया भुगतान सभी कर्मचारियों को करना चाहिए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के समय निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त डा और डीआर को मूल वेतन और पेंशन में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि टेक होम सैलरी बढ़े और महंगाई का असर कम से कम हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी खुशखबरी, 18 महीने का द अरियर भुगतान शुरू। जाने आपको कितना मिलेगा करना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। खबरों की माने तो सरकार ने 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान का फैसला लिया है। यह वही राशि है जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई थी। सरकार ने इस बकाया दा को 3 किश्तों में देने की योजना बनाई है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिले और सरकार पर भी वित्तीय दबाव कम हो। आइए जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में विस्तार से। द एरियर क्या है? दा यानी महंगाई भत्ता, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। अप्रैल 2020 से जून 2021 तक महामारी के चलते सरकार ने दा की बढ़ोतरी को रोक दिया था। अब इसी अवधि का बकाया द एरियर के रूप में दिया जाएगा। 3 किश्तों में होगा भुगतान। सरकार इस बकाया राशि को एक मुश्त देने की बजाय 3 हिस्सों में देने जा रही है। पहली किश्त जल्द जारी होगी, जिसमें शुरुआती बकाया राशि मिलेगी। दूसरी किश्त अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। तीसरी किश्त इसके 6 महीने बाद जारी होगी। द अरियर से क्या होंगे फायदे? अतिरिक्त आर्थिक सहायता, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। महंगाई से राहत, बढ़ती महंगाई के दौर में यह रकम बहुत काम आएगी। सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का सरकार पर भरोसा मजबूत होगा। दा की गणना कैसे होती है? दा की गणना मूल वेतन, बेसिक पे पर की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है और समय समय पर इसे बढ़ाती रहती है। 18 महीने के द अरियर के भुगतान से सरकार पर करीब 34,000 रुपए करोड़ का बोझ आएगा। इसीलिए सरकार इसे 3 चरणों में देने की योजना बना रही है, ताकि बजट पर ज्यादा असर न पड़े। क्या सभी कर्मचारियों को मिलेगा द अरियर?
यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगी जो अप्रैल 2020 से जून 2021 के बीच सेवा में थे या पेंशन प्राप्त कर रहे थे। नए भर्ती हुए कर्मचारी या अन्य श्रेणियां इस दायरे में नहीं आएंगी। द एरिया पर विवाद भी जारी। जहां कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह राशि एकमुश्त मिलनी चाहिए थी। कुछ विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरों में इसकी चर्चा जोरों पर है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अगर यह फैसला लागू होता है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों और को बड़ी राहत मिलेगी। अब सभी की नजर सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 56% होगा महंगाई भत्ता। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी कर्मचारियों को यह अच्छे से ही ज्ञात होगा कि भारत सरकार के द्वारा 1 साल में 2 बार महंगाई भत्ता में परिवर्तन किया जाता है, जिसका सीधा लाभ देश के केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को प्राप्त होता है और यह परिवर्तन 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार फरवरी के अंत में अपने सभी कर्मचारियों को तोहफा दी सकती है और यह तोहफा में वृद्धि को लेकर हो सकता है। यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर यहाँ वहाँ सर्च कर रहे तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस लेख में महंगाई भत्ते से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की जा सकती है और वृद्धि हो जाती है तो कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में की गई यह 3% की वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा देश के केंद्रीय कर्मचारियों को फरवरी के अंत तक उपहार प्रदान किया जा सकता है, जिसका लाभ कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को प्राप्त हो सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा आगामी समय में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने को लेकर ऐलान किया जा सकता है, जिसका कर्मचारियों के द्वारा बहुत इंतजार किया जा रहा है। यदि हम पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ऐसा देखा गया है कि भारत सरकार जनवरी के महंगाई भत्ते को फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में बढ़ाती है। सरकार द्वारा आगामी होली के त्योहार की पहली कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ प्रदान किया जा सकता है। आप सभी को तो पता होगा कि पिछली बार जब महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की गई थी तब अक्टूबर के पहले सप्ताह में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया था, हालांकि इसको लागू 1 जुलाई से माना गया था। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की अक्टूबर में वृद्धि की गई थी, जिससे महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% का हो गया था। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की गई थी, जिसके कारण ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचा था। अब महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 53% है। इसके साथ ही पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत 53% है। अगर सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता में 3% की वृद्धि की जाती है तो फिर यह महंगाई भत्ता 56% तक जा पहुंचेगी। कर्मचारियों के लिए कब तक महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है, इसका ऐलान भारत सरकार के द्वारा होली के त्योहार से पहले कर दिया जाएगा।
और इस बार होली का त्योहार 14 मार्च 2025 को है और सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की आगामी किस्त को 28 फरवरी को जारी किया जाना है एवं इसके पहले 26 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक हो जाने के बाद में भारत सरकार के द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही संसद में मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बकाया को जारी करने की कोई भी संभावना नहीं देख रही है। इसके साथ ही पंकज चौधरी के द्वारा एक सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों के बकाये महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को जारी करने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है, जो कोरोना महामारी के द्वारा रोका गया था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक परेशानी को देखते हुए सरकार द्वारा जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 की 3 किस्तों को रोका गया था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।